डियर ऑल, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। डियर ऑल, by the way of this Tatvar, by the way of this Tatva, सीटी मार रहा है ये। इसको बंद करो, ये बंद है ना, ये फिर सीटी क्यों मार रहा है? इसको थोड़ा उधर घुमाओ, उस साइड घुमाओ इसको, मुंह इसका जो है ना, इस कारण से वो गड़बड़ करता है। उस साइड घुमाओ इसको, और घुमाओ, और पूरा घुमा दो, और घुमा दो, और घुमा दो। Dear all, by the way of Tattvar Sutra, we are trying to understand the things that are the crux of Jainism. This Tattvar Sutra is such a granth in which the crux of Jainism is hidden, and out of this, that is why it is called the Moksha Shastra, because at one place it is describing the moksha, that is the salvation, and the second thing, the way to the moksha, that is way to the salvation. So that's why Acharya Uma Swamiji Maharaj is telling regarding the way to the salvation are Samyak Darshan Gyan Charitrani, and the seven tattvas Acharya is describing. Out of this, in the first chapter, Acharya had already told regarding the Samyak Darshan, and in this Samyak Gyan, Acharya had already told the 5 types of the Samyak Gyan, in which we had discussed regarding the Mati Gyan, then the Shuddha Gyan, and yesterday we had discussed regarding the Avadhi Gyan, and we see that what is the Avadhi Gyan. So that knowledge that knows the material things, that is the Avadhi Gyan, and we had discussed regarding the types of Avadhi Gyan, that is of 2 types. One is Bhav Pratyay and second is Guna Pratyay, that is called Shivopasham Nimit. Shivopasham Nimit, and again it has the further 6 types. So these things we had already discussed. So we had also discussed what is the difference between the bhav pratyay and gun pratyay. What are the differentiations? So we see that in one, the द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जो रूपी पदार्थों को जानता है, ये अवधि ज्ञान है। और इसके जो 2 चीजें हैं उसमें हमने डिफ्रेंसिएशन देखा था कि एक में विशुद्धि अधिक होती है, एंड सेकंड थिंग इज दैट अप्रतिपाती. So these 2 difference we had already seen. Yesterday we had also seen the difference between the Avadhi Gyan and Manepreya Gyan. So in this also we see there are 4 differences. One is Vishuddhi, second is Kshetra, third is Swami, and fourth is subject. One thing is Kshetra, means the area. The area that is covered by Avadhi Gyan is higher, and in Manepreya Gyan it is lesser, because it knows the things that are in your mind. So the area is less, and in this Avadhi Gyan, area is huge. Then second is Swami, the honors of these Gyans, that we had discussed, that area, that the honors in the Avadhi Gyan are more, because Avadhi Gyan is with the Devas, with the Narkis, and in the humans also. But the Manepreya Gyan is only to the humans, that too in the Muniraj. Thereafter the subject, Vishaya. So we see that the subject of Avadhi Gyan is स्थूल विषय होता है, it has higher, and मने प्रज्ञान सूक्ष्म, so it has only small subject. So these things we had already discussed up to the sutra number 25. Today we are taking the next topic, that is
the subject of Mati Gyan and Shut Gyan. What is the subject of Mati Gyan and Shut Gyan that we will discuss today in the by the way of सूत्र number 26. बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ जो कि अपने अंदर जैन धर्म के सार को लिए हुए है। सागर गागर में यदि सागर का कोई ग्रंथ है तो वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसमें कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिया गया। तो इसमें आचार्य ने सूत्रों के माध्यम से कितने विस्तृत वर्णन किए हैं, एक एक सूत्र अपने आप में कितनी कितनी गहराइयों को लिए हुए। तो ऐसा ग्रंथ आपके सामने है और इसमें आचार्य एक एक सूत्र के माध्यम से एक एक विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि आचार्य ने सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान का वर्णन किया था, और उसमें उनके विशेष रूप से अवधि ज्ञान के भेदों का हमने वर्णन पढ़ा था कि अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं। तो अवधि ज्ञान के भेदों में हमने देखा था कि अवधि ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का रहता है, एक तो भविष्यक और एक गुण विषयक। भविष्यक जिसमें भव ही कारण है, जो सभी देवताओं और नारकियों को होता है, और गुण विषयक जिसमें क्या कारण है, जिसमें आपका रिद्धि गुण ये अपने उसमें कारण है। और इसके विषय में हमने देखा था कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो भी कल हमने चर्चा की थी कि एक अप्रतिपाती है, होने पे छूटता नहीं है, और एक जो है वो छूट सकता है। इसमें गुण विषयक के 6 भेदों को अनुगामी, अननुगामी और वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, इन 6 विषयों के विषय में हमने जाना था। और साथ में हमने मनय प्रज्ञान से भी इसकी तुलना की थी कि अवधि ज्ञान और मनय प्रज्ञान में भी क्या अंतर है। तो इसका विषय स्थूल होता है, एक का विषय कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, और एक का एरिया बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र को लिए हुए, और एक छोटे क्षेत्र को लिए हुए। एक में बहुत सारे स्वामी हैं और एक में स्वामी कम हैं, इस प्रकार से। और चौथी बात विशुद्धि, तो जो मनय प्रज्ञान है उसमें विशुद्धि अधिक होती है, जबकि अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम होती है। ये सब चीजें हमने कल देखी थी। आज 26 नंबर सूत्र में आचार्य बता रहे हैं कि मनय प्रज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है। कल तो हमने देखा था विषय किसका, अवधि ज्ञान और मनय प्रज्ञान का। आज है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय। तो सूत्र नंबर 26 में आचार्य कह रहे हैं, मति श्रुत्योर्निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत्योर्निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तो यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान का निबंध यानी विषय क्या है, द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। अब यहाँ पर द्रव्येष्व, ये जो व शब्द आया है, ये व शब्द क्या है, वास्तविकता में ये संधि का द्योतक है। यहाँ पर संधि हुई है, और संधि क्या हुई है, ऊ के आगे यदि आ जाए तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। ऊ को ऊ के आगे आ जाए, ऊ प्लस क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो ये जो व शब्द है ना, तो ये कैसे आया, ऊ और अ को मिलकर मिला है। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्येषु, क्या है, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, ऐसा था। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। तो द्रव्येषु, तो द्रव्येषु का अर्थ है कि द्रव्यों में, और बहुवचन का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, द्रव्येषु। और असर्व पर्यायेषु, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो अधिकरण में पर, यानी कि 7वीं विभक्ति में क्या रहता है, में पर अधिकरण, तो अधिकरण का यहाँ पे प्रयोग है, यानी द्रव्यों में, द्रव्यों में, एक द्रव्य में नहीं, बहुवचन का प्रयोग, तो द्रव्यों में यानी सभी द्रव्यों में। अब ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। पहले हमने पढ़ा था रूपीश्व अवधे, यानी सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, रूपी पदार्थों को जानता है। तो वहां पे क्या है, एक द्रव्य की बात की वहां पे। अभी आएगा ये सूत्र रूपीश्व अवधे वाला। तो इसमें क्या है, जो अवधि ज्ञान है वो मात्र एक द्रव्य को जान रहा है, किसको,
रूपी पदार्थ कौन सा है? रूपिणः पुद्गला, अभी आगे सूत्र आएगा, तो मात्र पुद्गल को जान रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? द्रव्येषु, द्रव्येषु यानी कि बहुत सारे द्रव्यों को जान रहा है, एक द्रव्य को नहीं जान रहा। वहां तो मात्र पुद्गल द्रव्य को जान रहा है अवधि ज्ञान, लेकिन यहाँ पे क्या है? द्रव्येषु, बहुवचन का प्रयोग है, यानी द्रव्यों को जान रहा है। लेकिन असर्व पर्यायेषु, क्या कहा? सभी पर्यायों को नहीं जान रहा। द्रव्यों को तो जान रहा है लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जान रहा। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है उसका विषय संबंध सभी द्रव्यों में है, लेकिन पर्यायें कितनी है? कुछ ही पर्यायें हैं, सभी पर्यायों में नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बताई सूत्र में कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से सभी द्रव्यों को जाना जाता है। अब आप बताइए कि आपको कौन कौन से ज्ञान है? संतोष जी, कौन कौन सा ज्ञान है आपको? इतना ज्ञान तो होगा कि आपको कौन कौन सा ज्ञान है 5 ज्ञानों में से? पंडित जी, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान है। तो इसका मतलब है आप सभी द्रव्यों को जान रहे हैं। सभी द्रव्यों को जानते हैं ना आप? नहीं जानते? अरे कैसे नहीं जानते? जब आपके पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों हैं, और आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहें कि मति शुद्ध बंधु द्रव्य सर्व पर्याय, भले सभी पर्यायों को नहीं जानते लेकिन सभी द्रव्यों को तो जानते हैं। आपसे कहें कि 6 द्रव्यों के नाम बताएं तो बता दोगे? नहीं बता दोगे? बता दोगे ना? तो कैसे जाना ये आपने? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से जाना ना, बस यही बात यहाँ पे कही जा रही है। कोई कहे कि अब जीव द्रव्य तो अरूपी है, उसे कैसे जाने? धर्म द्रव्य है, अरूपी है, अधर्म द्रव्य अरूपी है, कैसे जान सकते हैं अपन उसको? अवधि ज्ञानी भी नहीं जान पा रहा जिसको, उसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जान पा रहा है। कितनी बड़ी बात है। अपन सोचते हैं कि अवधि ज्ञानी तो मुनिराज होते हैं, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, अपन तो कुछ भी नहीं जानते। वो मात्र पुद्गल द्रव्य को जान रहे हैं और अपन 6 के 6 द्रव्यों को जान रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। हमने एक दिन बताया था कि ये जो शुद्ध ज्ञान है ये केवल ज्ञान का पिता है। क्या है? पिता है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान उसमें कारण नहीं होता, मने पर ज्ञान भी कारण नहीं होता। शुद्ध ज्ञान के कारण केवल ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान से हमें पदार्थों का अनुभव होता है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा क्या होता है? हम 6 द्रव्यों को जान सकते हैं, और जब 6 द्रव्यों को हम जानते हैं तो ही हमको उनका श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होने पर वो क्या हो जाता है? सम्यक बने को ज्ञान हमारा प्राप्त हो जाता है। तो जो हमारा ज्ञान अभी तक क्या था? असम्यक था, असमीचीन था। जैसे ही हमने 6 द्रव्यों को समझा, जाना और उसमें हमारा श्रद्धान हो गया, श्रद्धा बैठ गई, सम्यक दर्शन हुआ, तो ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो गया। ये किस में होता है? ये वास्तविकता में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ही होता है। अवधि ज्ञान में नहीं हो रही ये बात, मने प्रय में नहीं हो रही। वहां तो पहले से ही सम्यक है। मने प्रय ज्ञान तो कभी मिथ्या होता ही नहीं है। और अवधि ज्ञान जो है वो भी अगर मिथ्या भी होगा तो उसको भी सम्यक कराने में कौन कारण है? यही सम्यक दर्शन कारण है। यही सम्यक दर्शन कारण है जिससे विभंग अवधि वो अवधि ज्ञान में बदलता है। तो जो ये श्रद्धान पैदा करने में कारण है वो क्या है? ये श्रद्धान पैदा कैसे हुआ? सम्यक दर्शन का बीज क्या है? यही शुद्ध ज्ञान है, जो कि असम्यक अवस्था में जब था तो इससे जब पदार्थों का बोध हुआ उसी से ये श्रद्धा पैदा हुई है। तो एक दृष्टिकोण से यूं कहें कि सम्यक दर्शन का बीज भी यही शुद्ध ज्ञान है। जब तक हम पदार्थों को नहीं जानेंगे, सभी द्रव्यों को नहीं जानेंगे, तब तक उनके अंदर श्रद्धा नहीं हो सकती। बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जानना तो सब चीज को है, चाहे दोष हैं और चाहे गुण हैं, लेकिन ग्रहण किसे करना है? गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को छोड़ना है। लेकिन ये सभी हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये बात ठीक है कि ग्रहण हमें मात्र गुण करने हैं और दोषों को छोड़ना है। तो गुण क्या है? ये गुण क्या है? ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय हैं, और
दोष हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, लेकिन ज्ञेय सभी हैं, ज्ञेय सभी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो चीज ग्रहण करने वाली है बस उसी को जानो। जानना तो सभी को पड़ेगा, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तो हे और उपादेय भी नहीं जान सकते। क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये निर्णय तभी कर सकते हो जब सबको जानोगे। केवली भगवान के केवल ज्ञान में सब चीजें झलकती हैं। त्रिकालवर्ती पदार्थ झलकते हैं, सभी पर्याय भूत भाविष्य और भविष्य सभी पर्याय झलकती हैं। तो ज्ञेय पदार्थ तो सभी हैं जी, तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं, और केवली तो तीन लोक के बाहर भी, अलोक में भी आकाश द्रव्य को भी जान रहे हैं, जो अलोकाकाश है उसको भी जान रहे हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं सभी ज्ञेय हैं। तो यहाँ जो शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान की बात कही है, वो क्या कही है कि इसमें सभी द्रव्यों को जान रहा है, एक द्रव्य को नहीं जान रहा। तो एक द्रव्य को नहीं जान रही है, सभी के सभी द्रव्यों को जान रहा है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है, 6 के 6 द्रव्यों को जान रहा है, जबकि अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को, पुद्गल द्रव्य को जान रहा है, और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी के सभी द्रव्यों को जान रहा है। चाहे वो आकाश द्रव्य है, चाहे वो पुद्गल द्रव्य है, चाहे वो जीव द्रव्य है, चाहे धर्म द्रव्य है, चाहे अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, सभी को जान रहा है। और वो कैसे जान रहा है, एकमात्र जो केवल ज्ञान में झलका है, जो केवली ने उपदेश दिया है, और उसको हमें हमारे गंधर्वों ने गूंथा है, और गंधर्वों ने जो गूंथा है उसके बाद उसको और आचार्यों ने सुना है। तो शुद्ध ज्ञान का अर्थ क्या है, शुद्ध ज्ञान का अर्थ है, पहले शास्त्रों को लिखने की परंपरा नहीं थी, और तो क्या शास्त्रों को लिखना भी क्या खराब माना जाता था। शास्त्रों को लिखना खराब इसलिए माना जाता था कि अगर आप कुछ लिखोगे, अब कागज की एक लाइफ है, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा, तो उसकी अवहेलना होगी जो उस पर लिखा गया है, अथवा वो कागज कहीं खराब स्थान पे भी पहुंच सकता है, किसी अशुद्ध स्थान पे भी पहुंच सकता है। तो इसलिए शास्त्रों को लिखा नहीं जाता था, मात्र जो केवली भगवान उपदेश देते थे गंधर्व आदि के द्वारा उसका निरूपण किया जाता था, उसे आचार्यगण सुनते थे और अपने शिष्यों को सुनाते थे। क्षयोपशम इतना अधिक था कि जैसे ही वो सुनते और सुनाते थे तो उनको सुनने वालों को भी समझ में आ जाता था, याद हो जाता था। आप देखिए आचार्य अकलंक देव एक ऐसे शिवोपशम के धारी कि जिनका ज्ञान का शिवोपशम इतना अधिक था कि एक बार कोई चीज को पढ़ लेते थे अथवा सुन लेते थे तो उनको याद हो जाता था। तो ऐसा पहले शिवोपशम था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शिवोपशम कम होता गया, और कम होते होते लोगों में विसंवाद शुरू हो गए। किसी ने कहा कि हमारे तो गुरु ने ऐसा बताया था, और उन्हीं गुरु के शिष्य कह रहे नहीं हमारे गुरु ने ऐसा नहीं ऐसा बताया था। जब इस तरह की सिचुएशंस खड़ी हो गई तब शास्त्रों को लिखना प्रारंभ हुआ, लिखना आवश्यक हो गया, ताकि जो हमारा शुद्ध है वो क्या हो, सुरक्षित हो सके, प्रामाणिक हो सके। नहीं तो आगे आगे ये संवाद विसंवाद बढ़ते जाएंगे, और विसंवाद बढ़ते जाएंगे तो वास्तविक शुद्ध का तो लोप ही हो जाएगा। और तो क्या, जिस शुद्ध जो है जहाँ एक और हमारे लिए सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाला था, वो सम्यक ज्ञान को प्रदान करने की बजाय हो सकता है मिथ्या ज्ञान को प्रदान करने लगे, और साथ में झगड़े झंझट का भी कारण बन जाएगा। तो इस कारण से शुद्ध का लेखन प्रारंभ हुआ। और आपको पता है कि शुद्ध पंचमी के दिन क्या हुआ था, पहला जो शास्त्र था छठखंडागम, तो उसकी रचना हुई थी। किसने की थी, भूतबली और पुष्पदंत और भूतबली नाम के जो थे, तो इनके लिए शुद्ध ज्ञान की रचना के लिए इन्होंने सबसे पहला षटखंडागम ग्रंथ लिखा था। तो अब इसकी पीछे कहानी है कि आचार्य ने उनको परीक्षा की, उनके लिए देखा, वो लंबी कहानी है। लेकिन हम इतना बता रहे थे कि जो शास्त्रों को लिखने की परंपरा शुरू हुई वो वहां से हुई, लेकिन वही शुद्ध ज्ञान जो लेखन किया गया वही उसके बाद क्या हुआ, और शास्त्रों में निबद्ध हुआ,
छठखंडागम से धवला जी पुस्तक आचार्य वीर सिंह स्वामी ने लिखी, उसके बाद धवला, महाधवला, जय धवला आदि पुस्तकें निकली। फिर बहुत सारे उसके बाद ग्रंथ लिखे गए कि गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड आदि, और आज के समय में अनेक अनेक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। एक दिन हमने श्रुत का विस्तार बताया था, तो श्रुत के विस्तार में हमने क्या बताया था कि लगभग 135 अरब वर्षों तक भी उसको पढ़ने लगे कोई तो भी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, इतना शुद्ध ज्ञान है, इतना शुद्ध ज्ञान का विस्तार है। और मूल शास्त्रों की तो 6 महीने तक खोली जला दी गई, उसके बाद भी आज इतना शुद्ध है कि व्यक्ति सारी उम्र भी पढ़े तो समाप्त नहीं होगा। तो इतना जो है ये क्या है, ये शुद्ध ज्ञान है। यही शुद्ध ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो रहा है, केवली भगवान से जो निकला है मुख से, वही परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो वही शुद्ध ज्ञान, उसमें 7 तत्वों का वर्णन है, 6 पदार्थों का वर्णन है। तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा तो हम 6 द्रव्यों को जान पा रहे हैं, लेकिन अवधि ज्ञान से मात्र रूपी पदार्थ को जान पा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है, द्रव्येषु, सभी द्रव्यों को जानता है। एक ऐसा ज्ञान है जो सभी द्रव्यों को जान रहा है। अब देखो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान का कितना बड़ा संबंध है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में शुद्ध ज्ञान कारण है, क्योंकि उसी के द्वारा हम द्रव्यों को जानते हैं, उससे श्रद्धान होता है, श्रद्धान होता है तो हम धर्म के मार्ग पे लगते हैं, तपस्या करते हैं और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान का भी यही बीज है, जिस शास्त्रों को हमने प्राप्त किया उसी से श्रद्धान हुआ तो क्या हो गया, ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हुआ। और केवल ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जब केवलियों ने प्रतिपादित किया तो वही शुद्ध का रूप लिया उसने। बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ, बताओ, पहले बीज था या पहले वृक्ष था? पहले बीज था। पहले बीज था अगर, तो उससे वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और वृक्ष के अंदर जो फल लगे उसके अंदर बीज आया। तो जो बीज आया वो कहां से आया, वृक्ष से आया ना। तो जब तक वृक्ष नहीं था तो बीज कैसे आया? और अगर कहो कि वृक्ष पहले था तो वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, बीज से ही तो हुई। तो ये क्या है, एक अनादि परंपरा है कि बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज और फिर उससे वृक्ष। तो उसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान का भी ऐसा ही संबंध है। केवल ज्ञान के द्वारा जो वाणी खिरी उससे शुद्ध की उत्पत्ति हुई, और शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब लोगों ने, अन्य लोगों ने जाना उस शुद्ध ज्ञान को तो उनका श्रद्धान पैदा हुआ, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ, और सम्यक ज्ञान को लेकर उन्होंने सम्यक चारित्र को धारण करके तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान, और दूसरी बात है कि मति ज्ञान भी साथ में ही है, अनादिकाल से। एक भी जब हम कहते हैं ना कि शुद्ध ज्ञान पहले आया या केवल ज्ञान पहले आया, तो वास्तविकता तो यह है कि जब हम निज आत्मा के ज्ञान गुण को देखते हैं तो उस दृष्टिकोण से क्या है, ये केवल ज्ञान ही है। आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो अपने आप में अनंत है, बस शक्ति अवस्था में नहीं है, अब शक्ति अवस्था में है, अभिव्यक्ति अवस्था में नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से ये केवल ज्ञान जो है हमारे साथ अनादिकाल से है, क्योंकि आत्मा का गुण है, शाश्वत है, ये कहीं से आया नहीं है, शाश्वत है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कराने में क्या कारण है, वो ये शुद्ध ज्ञान कारण है, उसकी अभिव्यक्ति कराने में शुद्ध ज्ञान। तो इस दृष्टिकोण से दोनों का तादात्म्य संबंध है, एक के बिना दूसरा रहता नहीं है। बस इतना अंतर है कि केवल ज्ञान जो है व्यक्त रूप में बाद में आता है, अभिव्यक्ति रूप में जिसे बोलते हैं, लेकिन शक्ति रूप में प्रत्येक आत्मा में पाया जाता है। एक इंद्रिय जीव से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी जीवों में, ये हमने बताया था कि जो श्रुत ज्ञान का सबसे पहला भेद है 20 भेदों में, कौन सा कल हमने बताया था ना कि इसके 20 भेद हैं, जिसमें अक्षर अक्षर समास, पर्याय पर्याय समास। तो ये जो 20 भेद है, इसमें जो सबसे पहला भेद है वो रहता है, क्या नाम से, उसके ऊपर आवरण नहीं आ सकता, उसके ऊपर आवरण नहीं आ सकता। तो वो शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में पाया जा रहा है, और मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान भी प्रत्येक जीव में पाया जा रहा है। तो उस दृष्टिकोण से शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान
ये व्यक्त रूप से प्रत्येक जीव में रहते हैं और केवल ज्ञान शक्ति रूप में रहता है। उसकी अभिव्यक्ति कराने वाला ये शुद्ध ज्ञान है। तो यहाँ पर ये बताया कि ये शुद्ध ज्ञान जो है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्य हैं। मति ज्ञान जब तक होगा नहीं तब तक शुद्ध ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसलिए सभी द्रव्यों को ये विषय करते हैं, चाहे वो जीव द्रव्य है, चाहे पुद्गल द्रव्य है, चाहे आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य, सभी को। लेकिन असर्व पर्यायेषु, सभी पर्यायों को विषय नहीं कर सकता, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर तो केवल ज्ञान के बराबर हो जाएगा। तो केवल ज्ञान तो सभी द्रव्यों को भी जानता है, उनकी सभी पर्यायों को भी जानता है, सूक्ष्म भी पर्यायों को जानता है, स्थूल पर्यायों को भी जानता है। लेकिन ये क्या है? सभी पर्यायों को नहीं जानता। जितना आपने पढ़ा, जितना आपका आशयोपशम है, उतना ही मात्र जानेगा। अगर आपका आशयोपशम और बढ़ता जाएगा तो आप और ज़्यादा जानते जाओगे, और बढ़ेगा और ज़्यादा जानते जाओगे। लेकिन अधिक से अधिक कितना जान पाएगा? अधिक से अधिक कितना जान पाएगा? केवल ज्ञान के बराबर जान लेगा क्या? नहीं जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाएगा? क्यों नहीं जान पाएगा? उसका कारण ये है कि शुद्ध ज्ञान जान कहाँ से रहे हो? केवल ज्ञान के द्वारा ही तो जान रहे हो। जो केवल ज्ञान में कही गई बात है उतनी तो जान पाओगे। केवल ज्ञान में जो बात निकली है, जो उन्होंने कही है, और उसके बाद भी जो उन्होंने सुनी है, किसने? गौतम गंधर्व ने जिसको गूंथा है, मुनियों ने जिसको सुना है, शास्त्रों में निबद्ध किया है, और उसके बाद जिसको आपने पढ़ा है, समझा है, याद किया, उतने भर को तो जान पाओगे। केवल ज्ञान तो अनंत है, उसमें तो सारी बात जितनी वो जानते हैं केवली उतनी कहते भी नहीं है, और जितनी कहते हैं उतनी अपन समझ नहीं पाते, और उसका भी अनंतवां भाग शास्त्रों में निबद्ध है। गोमट सार जीव कांड में एक श्लोक आया, पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अनभिप्पिलानम। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अनभिप्पिलानम। पन्नव निज्जा नाम पुन अनंत भावोदु सुध निबद्धो। गोमट सार जीव कांड में ये बात आई। क्या अर्थ है इसका? बोले पन्नव निज्जा भावा अनंत भागोदु अनभिप्पिलाम। केवली भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतवां भाग कहते हैं। अनभिप्पिला, अभिलाप में जो आता है अनंतवां भाग है वो उनके, जितना उनके केवल ज्ञान में विषय है, केवल ज्ञान का जितना विषय है, जितना वो जानते हैं, उसका अनंतवां भाग अनभिप्पिला, वो तो बहुत थोड़ा सा कहते हैं। पन्नव निज्जा नाम पुन, दोबारा जितना उन्होंने कहा, अनंत भागो तो शुद्ध निबद्धो, उसका भी अनंतवां भाग शुद्ध निबद्धो, यानी कि शुद्ध में निबद्ध है, शास्त्रों में निबद्ध है। अनंत में का भी अनंतवां भाग हमें प्राप्त हो रहा है, और हम उसको भी नहीं पढ़ पा रहे, इतनी भी क्षमता नहीं है कि उसको भी समझ सकें, पढ़ सकें। तो इसलिए शुद्ध ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के सामने ना के तुल्य है। लेकिन वही शुद्ध ज्ञान जो है केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तो इसलिए उसको पिता कहा है और केवल ज्ञान को पुत्र कहा है, उस दृष्टिकोण से। तो शुद्ध ज्ञान जो है सभी द्रव्यों को विषय करता है, लेकिन सभी पर्यायों को विषय नहीं करता। जितना आपका शिवोपशम है उतने को ही विषय करता है। अब ये आपका अपना आपका अपना पुरुषार्थ है कि आप कितना पुरुषार्थ शुद्ध ज्ञान के लिए कर रहे हैं। ये आपका अपना, आपकी कितनी रुचि है, कितना आपका पुरुषार्थ है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो तीनों टाइम क्लास में आते हैं, दोपहर में स्पेशली चल के क्लास में आते हैं और ध्यान से सुनते हैं। शाम को 24 छाना की क्लास में छोटे छोटे बच्चे और बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। 7वीं क्लास का एक बच्चा आता है, क्या नाम उसका? क्या नाम? विदित। विदित इतना ध्यान से सुनता है 24 छाना की क्लास को, और हम पूछते भी हैं कई बार उससे, अलग से पूरा सुनाता है, क्लास में भी पूछ लेते हैं कई बार। यानी 7वीं क्लास का बच्चा और 24 छाना की क्लास में कहीं क्या नाम से आपका गुण स्थान के विषय में, कहीं योग मार्गना के विषय में, आहारक मार्गना के विषय में, ऐसे टिपिकल टॉपिक महिलाओं में बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, नोट करते हैं। तो शुद्ध ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता।
शुद्ध ज्ञान के लिए पहली बात तो रुचि चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और दूसरी बात पुरुषार्थ होना चाहिए, तब कहीं जाकर शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि होती है। नियम से सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन कितना पाया जा रहा है ये अपना अपना क्षयोपशम, उसके लिए पुरुषार्थ जन्य बात है। क्योंकि ज्ञान के लिए क्या कहा कि एक तो आपका क्षयोपशम होना चाहिए और दूसरा रुचि होनी चाहिए, उपयोग लगाना चाहिए, उपयोगो लक्षणम इसमें आएगा सूत्र। तो यदि हमारा उपयोग नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता, हमारा क्षयोपशम नहीं है। अरे क्षयोपशम तो बहुत है, क्षयोपशम तो बहुत है, आप उपयोग लगा के याद नहीं कर रहे इसलिए याद नहीं होता। बच्चे लोग आते हैं, हम पेपर में पास नहीं हो पा रहे, तो वो सब क्या है, शुद्ध ज्ञान है वो सब। क्षयोपशम नहीं है, बच्चे का माइंड इतना फास्ट नहीं है। अरे वही बच्चा महाराज ने आशीर्वाद दिया, फर्स्ट आ गया क्लास में, क्या हुआ वो? महाराज ने कोई जादू नहीं किया, वास्तविकता में उसको उपयोग लगाने की प्रेरणा दी, उसको उपयोग लगाने का तरीका बताया और उसने उपयोग लगाया, तो जो पास नहीं हो पा रहा था वो फर्स्ट भी आ गया। तो ये वास्तविकता में क्या है, क्षयोपशम तो बहुत है अपने पास। मनुष्य अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जिसका क्षयोपशम बहुत सारा है, संगी प्राणी है, और संगी प्राणियों में भी सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, त्रियंचों से और सबसे श्रेष्ठ है वो। मस्तिष्क है उसके पास, सोच विचार की क्षमता है, निर्णय करने का उसके पास तरीका है। तो ये सब क्या है, ये क्षयोपशम है। कमी है तो उपयोग की, हम उपयोग नहीं लगाते, हमारा उपयोग इधर उधर भटका रहता है। आप ये देखो, एक छोटा सा बच्चा है जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, उससे सारे क्रिकेटरों के नाम पूछ लो, कैसे याद होगा? जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, उससे सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के सबके नाम याद हो जाएंगे। जिसका फिल्मों में इंटरेस्ट होगा, उसको सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम याद हो जाएंगे। तो ये क्या है, उसका वहां पर इंटरेस्ट है, रुचि है। और जिनका धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट है, उसको सारे ग्रंथों के नाम याद हैं, आचार्यों के नाम याद हैं, उनकी सारी बातें याद हैं। तो वो कैसे हो रही हैं? क्षयोपशम तो है, एक साइंटिस्ट है, कितनी कितनी खोजें कर रहा है, क्षयोपशम के कारण ही कर रहा है ना। तो और आप लोग भी दुकान चलाते हो, वहाँ आपको सारा, किसी की करियाने की दुकान है क्या, हमारे संतोष जी की। अब संतोष जी आप ये बताओ कि आपको आपके करियाने की दुकान में कितनी आइटमें हैं? 600-700 आइटमें तो होंगी, 500-600 आइटमें। कहीं दाल है, कहीं 10 तरह की दालें होंगी, अनाज होंगे, कहीं ड्राई फ्रूट होंगे। और ग्राहक आता है तो आपको रेट लिस्ट देख के बताना पड़ता होगा कि इसका ये रेट है। कैसे याद रहता है? क्षयोपशम है ना। जब क्षयोपशम में आपको 500 चीजों के, और ये तो करियाने की, किसी की मेडिकल की दुकान है क्या, मेडिकल वाले हैं कोई? अब मेडिकल वालों को सोच लो, उनके पास तो कोई गिनती ही नहीं है कितनी आइटमें हो जाएंगी, कितनी प्रकार की दवाई, कौन सी दवाई कहाँ रखी है, पहली बात तो रेट तो बात की बात है, कौन सी दवाई कौन से खाने में कहाँ कैसे रखी है, खट से निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, क्षयोपशम। डॉक्टर साहब हैं हमारे, कितना सारा क्षयोपशम है उनका, कौन सी बीमारी है, कौन सा नाड़ी देखी पता लग गया अमुक बीमारी है, ये सब क्षयोपशम है। तो जो क्षयोपशम है उसका उपयोग कहाँ लगा रहे हैं अपन? जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, जिसमें रुचि होगी, वहां पे आप उपयोग लगाओगे तो निश्चित रूप से उस क्षयोपशम की आपको प्राप्ति होगी, वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो लब्धोपयोग, लब्धि और उपयोग, ये जो दो चीजें हैं, तो लब्धि यानी क्षयोपशम और उपयोग यानी वो इंटरेस्ट हो वहां पर उसको अप्लाई करना। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो विषय जो है समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कभी अपन को ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत कठिन विषय है, ये तो हमारे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमारी क्लास में भी बच्चे बहुत सारे आते हैं शाम को, लेकिन कुछ तो थोड़ी देर बैठेंगे फिर वो भग जाएंगे, क्यों, उनके समझ में नहीं आ रहा। और वही उसी उम्र के बच्चे जो ध्यान से सुनते हैं, समझ में भी आता है। तो वास्तविकता में जो उपयोग लगाता है तो उसको सारी बात समझ में आती है, तो वही शुद्ध ज्ञान है ये। तो यहाँ पर आचार्य जी ने इस सूत्र के माध्यम से यही कहा कि सभी द्रव्यों के लिए, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानता, उन्हीं पर्यायों को जानेगा जहां पर अपना
जितना शिवोपशम होगा, और शिवोपशम कैसे आएगा, जब हम उसमें पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए आज क्योंकि समय भी आपका हो रहा है, तो आज हम इतना ही लेंगे, और इसमें हमें यही देखना है कि हम कोई भी विषय रहते हैं अच्छे उपयोग लगा करें, और ख़ास तौर पे जहाँ कहीं शास्त्रीय विषय आ जाते हैं, क्योंकि लौकिक विषय पढ़ाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये शास्त्रीय विषयों को इतना डिटेल में समझाना ये हर कोई नहीं कर। तो जब ऐसा अवसर मिल जाए तो हमको सारे काम छोड़ के, और वैसे भी हम कहते हैं कि इससे आपका शुभशम तो बढ़ता ही है, साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक कार्य तो स्वाध्याय हो, वैयावृत्ति हो, रात को वैयावृत्ति में उतने ही लोग आ पाते हैं जिनका क्या है, पुण्य है। पुण्य से ऐसे अवसर मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। दुनिया है, अब देख लो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मात्र वही जो, और जो आते हैं वो रेगुलर आते हैं, चाहे हमारे बालचंद जी हों, चाहे हमारे राजू भैया हों, चाहे हमारे पंडित जी हों, चाहे हमारे शिखर चंद जी हों, और सबके हमें नाम नहीं मालूम, हमारे संतोष भैया हैं, राजेंद्र जी हैं, डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे लोग, पुण्य है उनका, हमारे घेवर चंद जी, अब बाकियों के हमें नाम नहीं पता। तो कहने का मतलब है, महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो कहने का मतलब है कि जिनका पुण्य है वो ही आप आ रहे हैं। चाहे आहारदान में कुछ लोग रेगुलर आते हैं, हमने देखा वो विदित रोज जाता है आहार में, हमारे वो भैया है, क्या नाम, अर्पित भैया, मनोज भैया अभी नहीं जा पा रहे, वैसे वो भी रेगुलर आते हैं। जिसकी जहाँ रुचि होगी वो अपने आप पहुंचेगा, स्वाध्याय में, वैयावृत्ति में, गिनती के लोग हैं, बिल्कुल फिक्स रहता है उनका अपने टाइम से। तो हमारे महेंद्र भैया बाकी क्लासें तो पढ़ते हैं, इसके बाद इनकी एक और क्लासें चल रही हैं, ये 3 क्लासें तो हैं ही हैं, इसके अलावा अलग से इनकी एक स्वाध्याय की क्लास चलती है। विदित जो है उसकी भक्तांबर की क्लास अलग से चल रही है। तो जिनकी जहाँ रुचि है वो उसका फायदा ले रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, बस अपना जो रूटीन है वही कर रहे हैं, वही दुकान पे पहुंचना है उन्हें, वही अपना घर गृहस्थी चलानी है, चाहे वाचना चल रही हो, चाहे कोई महाराज आए हो, उनको कोई, क्योंकि पुण्य नहीं है, पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए इसके लिए। किसी की तो मजबूरियां हैं, मान लेंगे कि भैया सर्विस वाला है, अब उसको 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है। हम कह रहे हैं दिन में तो मजबूरी हो सकती है, रात को तो मजबूरी नहीं रहती, वैयावृत्ति में लाभ ले सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पुण्य नहीं है। तो जो व्यक्ति जिसका जैसा पुण्य होता है उसके अनुसार उसको लाभ मिलता है। तो हम जो स्वाध्याय की बात कर रहे थे, स्वाध्याय से तो 1 से 2 फायदे हो रहे हैं, एक और हमारे लिए श्रुत ज्ञान का शिवोपशम बढ़ रहा है, और ऐसे विषय में शिवोपशम बढ़ रहा है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। लौकिक ज्ञानों का विषय तो आपके लिए संसार में डालने वाला है, संसार की रीति बताएगा, धन उपार्जन के आपको उपाय बताएगा, और उसके बाद क्या होगा, भोगों में फंस के आपको दुर्गति का पात्र बना देगा। लेकिन ये शास्त्रीय विषय जो है, ये आपके शास्त्रीय ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान को, वैराग्य को उत्पन्न करवाने वाला है, और वैराग्य को उत्पन्न करा के उस ज्ञान को आपके सम्यक ज्ञान में बदल देगा, और सम्यक ज्ञान के बाद एक दिन केवल ज्ञान की भी आपके लिए प्राप्ति करा लेगा। तो ऐसा जब भी आपके लिए विषय मिले, ऐसा कभी भी अवसर मिले, स्वाध्याय का मिले और धार्मिक कोई भी कार्य अवसर मिले, निश्चित रूप से सारे काम छोड़ के अपन को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें लेकर अपना पुण्य में वृद्धि करके एक दिन पुण्य फला अर्हंता, अर्हंत और सिद्धपद की भी प्राप्ति करनी चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।